কেদারনাথ যাচ্ছি শুনে আমার বন্ধু ভাই শুভানন্দ বলেছিল একবার ত্রিযুগী নারায়ণ ঘুরে আসতে, পারলে এক রাত ওখানে কাটিয়ে আসতে। ওখানে নাকি এনার্জি ফিল করা যায়, বিশেষ করে যেখানে অখণ্ড ধ্বনি জ্বলছে সেইখানে। শুভর কথা আমি জেনারেলি ফেলি না, ওর অনেক পড়াশুনো, অনেক ঘোরাঘুরি করা আছে, তাই ঠিক করেছিলাম কেদার ফেরতা ত্রিযুগী নারায়ণ যাব। ত্রিযুগী নারায়ণ দর্শন সেরে যাব কালীমঠ, ওখান থেকে রুদ্রপ্রয়াগ, সেখান থেকে বদ্রীনাথের বাস ধরব। কিন্তু আগেই বলেছি তোমাকে, তোমার নিয়ন্ত্রতা যদি তোমার জন্য অন্য কিছু নির্দিষ্ট করে থাকেন তাহলে তুমি কি করবে? কেদার থেকে সোনপ্রয়াগ ফিরে এলাম 1 জুলাই। রাতটা সোনপ্রয়াগে কাটিয়ে পরের দিন রওনা দেব ঠিক করেছিলাম। সকালে উঠে দেখি দুপায়ের কাপ মাসেলে বেশ ব্যথা, পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। ঠিক করলাম আজ সারাদিন রেস্ট নেব। মাত্র 200 টাকায় থাকার ব্যবস্থা, আর সারাদিনে খাওয়া দাওয়া বাবদ আরো 200 টাকা। সুতরাং এখানেই বিশ্রাম নেওয়ার শ্রেষ্ঠ জায়গা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম কাপ মাসল স্টিফ হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং বিষক্ষয় করতে হবে। পাহাড় বেয়ে উঠে গেলাম ওপরের গ্রামে। ওখানে গ্রামের মানুষদের সাথে গল্প করে চা খেয়ে দুপুরবেলা নেমে এলাম আমার আশ্রয়ে। এতে স্টিফনেস অনেক কমে গেল। পরের দিন অর্থাৎ 3রা জুলাই ভোর রাতে মায়ের সতর্কবাণী আর আদেশ পেলাম। মা জানালেন বদ্রীনাথের পথে না যেতে, ধস নামবে। ফিরে যেতে আদেশ করলেন মা। কিন্তু আমি যে ত্রিযুগী নারায়ণ যাব বলে সংকল্প করেছি মা, আর এখন এই কম সময়ে ট্রেনের টিকিটও তো পাবো না। মা বললেন ত্রিযুগী নারায়ণ দর্শন করে ফিরে যেতে আর ট্রেনের টিকিট কেটে নিতে। ঘুম ভেঙে গেল। ফোনটা তুলে নিয়ে ভাবছি ইন্টারনেট তো এখানে নেই, টিকিট কি করে কাটবো? তৎকাল 10টার পর খুলবে, আমি কি তখন সোনপ্রয়াগ বাজারের কাছে গিয়ে টিকিট কাটবো? ওখানে দেখেছি ইন্টারনেট পাওয়া যায়। আমাকে চমকে দিয়ে দেখি ফোনে নেট কানেকশন তুঙ্গে, একেবারে 5G। টিকিট কাটার অ্যাপে ঢুকে আরো চমক, হরিদ্বার থেকে নিউ দিল্লি আর নিউ দিল্লি থেকে হাওড়ার টিকিট মজুদ। কেটে নিলাম টিকিট কেটে বাথরুম ঘুরে এসে ফোন হাতে নিয়ে দেখলাম ইন্টারনেট গায়েব। রেবা মাকে প্রণাম করে তৈরি হলাম ত্রিযুগী নারায়ণ দর্শন করার জন্য। সোনপ্রয়াগ থেকে মাত্র 12 কিলোমিটার দূরত্বে পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত ত্রিযুগী নারায়ণ। কথিত আছে এখানেই নাকি শিব পার্বতীর বিবাহ হয়েছিল। ত্রিযুগী নারায়ণ মন্দিরের পুরোহিত রামস্বরূপ ভাটের মুখে শোনো পুরাণ কথা, তারপর আমি তোমাকে শোনাবো এর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য। इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण है। आप उस स्थान पे आए हैं जहाँ पे शिव और पार्वती का विवाह हुआ है त्रेता युग में। आपने सुना या देखा होगा कि जहाँ हरिद्वार कनखल में दक्ष राजा का मंदिर है, वहाँ पे यज्ञ का आयोजन किया है, तो सभी देवताओं को यज्ञ में बुलाए गए, लेकिन शंकर भगवान का वहाँ पे अपमान किया था। तो वहाँ पे सती नाम था पार्वती का पहले, तो उनको नहीं बुलाया गया, उनके पति को शंकर को नहीं बुलाया गया, वो उनका अपमान किया था। क्यों किया गया था? क्योंकि उन्होंने कहा सभी देवता यहाँ पे आएंगे यज्ञ में, तो शंकर भगवान का अपमान किया था उन्होंने, क्योंकि वो भस्म लगाते हैं, बागंबर पहनते हैं, भांग धतूरा पीते हैं, सर्पों की माला पहनते हैं, तो ये उन्होंने कहा ये यज्ञ में शोभा नहीं देगा, तो सती नहीं देगा, इनका अपमान किया यहाँ पे। तो सती माता ने अपना देह अग्निकुंड में त्याग दिया था। दोबारा पर्वतराज हिमांचल की राजधानी पर्वतराज हिमांचल के घर में मैना के गर्भ में जन्म लिया, तो पार्थिव नाम पड़ा। तो विष्णु भगवान राजा हिमांचल के आराध्य देवते इष्ट देव 52 भगवान विष्णु भगवान है, जिन्होंने राजा बलि को पातल होकर राज दिया था, वही रूप में भगवान विष्णु भगवान है 52 अवतार में यहाँ पे। तो उन्हीं ये राजा हिमालय के इष्ट देव थे। तो राजा हिमालय के घर में फिर पार्थिव नाम ने जन्म लिया, पार्थिव नाम पड़ा। पार्थिव ने फिर जन्म लिया, तो पार्थिव नाम पड़ा, मैना के गर्भ से लिया हुआ जन्म, तो पार्थिव नाम पड़ा। तो पर्वतराज हिमांचल की राजधानी में, तो ये हिमांचल राजधानी की राजधानी है पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती। तो विष्णु भगवान राजा हिमांचल के आराध्य देव थे। तो इनको साक्षी करके त्रेता युग में शिव और पार्वती का पार्थिव नाम पड़ने से यहाँ पे विवाह हुआ। तो ये विष्णु भगवान को साक्षी करके हुआ था। तो यहाँ पे मंदिर प्रांगण में 4 कुंड है। पहला ब्रह्मा का ब्रह्म कुंड, दूसरा है रुद्र कुंड शिव का। इनमें यात्री लोग स्नान वगैरह करते हैं, पंच स्नानी करते हैं।
और विष्णु कुंड है, भगवान विष्णु भगवान का जल आता है, भगवान के कमलनाभ से चौड़पादका से ये जल आता है। विष्णु कुंड में आचमन होता है। ये जल को बताते हैं किसी को ब्लड कैंसर है, पेट का बीमारी, अनेक कोई आंतरिक बीमारियां, तो इस जल को पीने से ठीक हो रहे हैं। तो कई लोग ठीक हो गए, दोबारा भी जल ले गए। विष्णु भगवान का विष्णु कुंड है वो। सरस्वती कुंड में पितरादि तर्पण होते हैं, जो कोई मरे रहते हैं पुरखे वगैरह, उनको वहाँ पे जलदान होता है। 5वां स्थान है वहाँ पे धर्मशिला, उसका नाम है धर्मशिला। वहाँ पे शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। वो तो उस स्थान पे पूजा पठन होता है, थाली आती है, उसमें चावल रहते हैं, रोली अगरबत्ती वगैरह फूल वगैरह रहते हैं, उसमें पूजन होता है उस शिला का। तो चावल उस समय राजा हिमालय ने कहा कि हीरा मोती माणिक का दान किया था, तो कलयुग में वो चावल मोती के बजाय उसमें अन्नदान होता है। उस शिला की पूजा करके वो अन्नदान दिया जाता है वहाँ पे। वहीं पे गाय बांधने के कला गोदान का गोदान भी होता है वहाँ पे। अंदर में भगवान त्रिजुगीनारायण के दर्शन है बड़े मंदिर में। बीच में भगवान त्रिजुगीनारायण जी चतुर्भुज मूर्ति 52 अवतार में भगवान विष्णु भगवान। डोले पे है लक्ष्मी जी, बाएं भाग में है सरस्वती जी, पीछे से कॉपर का 2 मूर्ति है, कुबेर और क्षेत्रपाल जी है, बद्रीनाथ जी है, रामचंद्र जी है, आदि गुरु शंकराचार्य जी का मूर्ति है और सत्यनारायण का मूर्ति है, बड़ी मूर्ति। और उसके नीचे शिव पार्वती का सौभाग्य मूर्ति है जोड़ा सहित, कपल मूर्ति है जोड़ा सहित वर वधू रूप में, और अखंड प्रदीप है। तो भगवान के चरणों में 108 शालिग्राम शिला है, 108 शालिग्राम शिला है भगवान के चरणों में। आगे से चांदी की मूर्तियां हैं, पीछे से पाषाण की मूर्तियां भगवान विष्णु भगवान स्वयं है। और पूरा मंदिर जल में, ये मंदिर में जो जल प्रांगण में कुंड में आता है, भगवान के अंदर ही से ये जल आता है। कमलनाभ चौड़पादका से जल बहता रहता है निरंतर। और भगवान के आगे अखंड धूनी जलता है, जहाँ पे शिव और पार्वती ने फेरा लिया था भगवान को साक्षी करके। वो अग्नि कुंड त्रेता युग से अखंड जलता है, उसमें त्रेता युग से वो अभी तक प्रज्वलित है। उसका भस्मी मुख्य प्रसादी में जाता है। किसी को भूत प्रेत छल कपट जादू टोना तंत्र मंत्र या कोई कार्य सफल हो, भस्मी लगाने से कार्य सफल होता है। वो भस्मी मुख्य प्रसादी जाता है, वो अपने में सिद्ध है, उसको न सिद्ध करना पड़ता है, वो स्वयं सिद्ध हो जाता है। वो मुख्य प्रसादी जाता है भगवान त्रिजुगीनारायण की भोलेनाथ का भस्मी का, वो प्रसादी प्रसाद में जाता है। वही अखंड उसमें कलयुग में मानव ने उसको अग्नि को जिंदा रखने के लिए उसमें लकड़ी वगैरह काट दिया जाता है, उसमें लकड़ी चढ़ाई जाती है, उसको प्रज्वलित रखा है, उसमें नित्य हवन होता है, नित्य संविधा लगता है और अखंड है। वो बहुत प्राचीन है, त्रेता युग से अखंड जलता है। भगवान के सामने पे वो अखंड धुनी। बाहर प्रांगण में गणेश, अन्नपूर्णा, ईशानेश्वर महादेव, बजरंगबली, अर्धनारीश्वर जी का मंदिर है। और ये भगवान बद्रीनाथ में तपस्या के रूप में यहाँ पे 52 रूप धारण किया। दोनों विष्णु भगवान का स्थान है। तो ये 52 रूप धारण किया, जिन्होंने राजा बलि को पाताल लोक कराया दिया था, वही रूप में भगवान विष्णु भगवान यहाँ पे विराजमान है। और उनके साथ लक्ष्मी और सरस्वती विराजमान है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, चाहे बर्फ गिरे चाहे सर्दी हो, ये 12 मास खुला रहता है। ये मंदिर क्लोज हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे कई लोग यहाँ पे शादी वगैरह करते हैं, शादी भी करते हैं यहाँ पे, और कोई साल गिरा करते हैं, कोई फेरा वगैरह लेते हैं इस मंदिर में। भगवान को जैसे भोलेनाथ ने फेरा लिया, उस धुनी में फेरा वगैरह करते हैं। और यहाँ पे कई शादियाँ होती हैं, अपने वर वधू अपने आशीर्वाद देते हैं भगवान नारायण से, भोलेनाथ से। तो यहाँ पे कई लोगों ने शादी कर दी, अभी भी शादियाँ होती रहती हैं। और कोई साल गिरा पे आते हैं, कोई अपने उसमें आते हैं इसमें, तो फेरा वगैरह लेते हैं और अपने चलते हैं। मेरा नाम है रामस्वरूप भट्ट, ग्राम पोस्ट त्रिजुगीनारायण। हम यहाँ के पुरोहित हैं। बोले भगवान त्रिजुगीनारायण की जय, बोले शंकर की जय। শিব পার্বতীর বিয়ে, চৈতন্য আর শক্তির সম্বন্ধটা বেদে এবং অন্যান্য মরমিয়া সাহিত্যে পুরুষ আর স্ত্রীর সম্পর্কের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। বর্ণনাটা তখন প্রাকৃত জগতের ভাষায় হয় বলে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়। প্রাকৃত জগতে নারী পুরুষের সম্পর্কটা এই রকম। প্রত্যেক পুরুষ নারীর গর্ভে জন্মায়, নারী তখন মা। ছেলেটির একটি বোন জন্মালো, তারপরে সে বিয়ে করলো, সেই নারীর গর্ভে তার একটি কন্যা জন্মালো। এখানে মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্বামী, স্ত্রী আর পিতা, কন্যা, এই 4টি অবস্থা দেখতে পাচ্ছি। প্রথমটিতে নারী বড়, পুরুষ ছোট। পরের দুটিতে পুরুষ আর নারী সমান সমান। শেষেরটিতে পুরুষ বড়, নারী ছোট। এখন পুরুষের দিক থেকে প্রথম সম্বন্ধটি দাস্যের, দ্বিতীয় তৃতীয়টি সখ্যের, চতুর্থটি বাৎসল্যের। সখ্যের একটা রকম ফের আছে,
যেমন ইউরোপ আমেরিকার সমাজে বন্ধু আর বান্ধবী সম্পর্ক, আমাদের দেশে বৌদি আর দেবরের সম্পর্ক। এই সম্বন্ধগুলির মধ্যে এক স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ছাড়া আর কোথাও যৌন সম্পর্ক নেই। যখন বৈদিক দেবতাদের বেলায় এই সম্পর্কগুলির কথা ভাববে, তখন ওই প্রাকৃত যৌন সম্পর্কটি বাদ দিয়ে ভাবতে হবে। আমরা যৌন ব্যবহারের দিক থেকে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটাকে দেখি বলে তাকে আলাদা একটা কিছু মনে করি, কিন্তু লক্ষ্য করি না যে প্রেমের সব মেয়ে যখন স্ত্রী হয়, তখন তার মধ্যে যৌন সম্পর্কহীন সব ভাবগুলি খেলা করে। কালিদাস যেমন অজের মুখ দিয়ে ইন্দুমতির কথা বলেছিলেন, তেমনি করে একটি মেয়ে স্ত্রী হয়েও কখনো মায়ের বাৎসল্য নিয়ে স্বামীর সেবা করে, কখনো বন্ধুর মতো সচিবের ভূমিকা নেন, কখনো বা শিষ্যার মতো কন্যার ভূমিকা নেন। তাহলে কি শক্তি সাধকের ভাষায় বলা যায় না, জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে? একই মহাশক্তি জননী, সহোদরা বা সঙ্গী এবং কন্যা। আবার সব মিলিয়ে পরম সামরস্য পুরুষের জায়া, দুইটিতে মিলে তখন অর্ধনারীশ্বর। এর মধ্যে যৌন সম্পর্কের ভাবনা এসে গেলেই তুমি বলবে মা কি করে বউ হয়, বউ কি করে মেয়ে হয় ইত্যাদি, তাই না? কেননা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে যৌন সম্পর্ক ছাড়া অন্যরকম ভাবতে আমরা অভ্যস্ত নই। সূর্য জ্যোতিস্বরূপ, তখন সূর্য আর তার জ্যোতি দুইটিতে একটি মিথুন, দুয়ের মধ্যে তখন নিত্য পতি পত্নীর সম্পর্ক। কিন্তু উষাকালে পৃথিবীতে যখন সূর্যের কচি আলো ফোটে, তখন কি তাকে তার মেয়ে বলতে পারি না? সেই আলোই চড়া হয় দুপুর 12টায়, সূর্যের স্বরূপ জ্যোতিতে ফুটে ওঠে, তখন সে কি সূর্যের স্ত্রী নয়? তাহলে মেয়েই তো স্ত্রী হলো। পুরুষ সর্বদা একভাবে আছেন, কিন্তু তার শক্তির উপচয় আছে। অনুপচিত শক্তি কন্যা, উপচয় জায়া। প্রাকৃত জগতেও বালিকাবধূ কন্যা বড় হয়ে হবে জায়া। হংসবতী ঋকে বলছে, রুদ্র ব্রহ্মা বিষ্ণুময়, জগৎ অগ্নিষ্মাত্মক, পুংলিঙ্গ সমস্তই শিব, স্ত্রীলিঙ্গ সকলই উমা। স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ সমস্তই শিব শক্তাত্মক, ব্যক্ত রূপ সকলই উমা, আর অব্যক্ত রূপ মাত্রই পরমেশ্বর রুদ্র। উমা আর শঙ্করের যে যোগ, সেই যোগই বিষ্ণু নামে কথিত হয়। এবার বুঝেছ তো বৃষ্টি, ত্রিযোগী নারায়ণ কেন হর পার্বতীর বিবাহস্থল, কেন এখানে অগ্নি সদা জাজ্বল্যমান? অনেক গল্প হলো, এবার ফেরার পালা। পরের দিন ঋষিকেশ যাত্রার গল্প শোনাবো। আজ আসি, ভালো থেকো, সঙ্গে থেকো এই মুসাফিরের। আর আত্মীয় বন্ধুদের বলো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে।